ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੀ ਹਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ? ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਊਆਰ ਕਾਰਡ। 2022 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਫੀਸ ਲਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੰਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 235 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ 70 ਕੁ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂ। ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ, ਸਵੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਸੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਧੋਖੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਰੀ ਫੜੀ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆ ਲੱਕੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 500 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਓ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਮਿਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਕੇ ਰਟਾਂਗੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਫੰਡ ਮੋੜੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣੇ, ਤਰਸੇਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਤਰਸੇਮ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਧਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਾਤੀ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਡਕੋਲੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਪਰੇਟੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਆ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਆ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਸਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ 280 ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਲੋਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ 200 ਬੰਦੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਗੋਨੇ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰੋਂ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ, ਆਪਦਾ ਕਈ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਰਕਮ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਏ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪੱਲੇਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਕਿਉਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਈਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਲੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗਮ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਨੁਗਮ ਪਾਸਵਾਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता जी। लगभग 32 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ फरीदकोट। इसमें कुछ एक संघ के बारे में जानकारी मिली। संघ में प्रधान जी का इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा रहा और इसके लेकर के संघ का कार्रवाई करके मजदूर से चंदा लगा करके हम तरसेम भार्गव, हम परवीन भार्गव और एक तरसेम शर्मा जी थे जो कि रिटायर फौजी थे, ये तीनों मिल करके आकर के सिटिंग मीटिंग करके नौकरी के झांसा देख करके लगभग 50 लाख रुपया फरीदकोट से ठगी मार करके एकत्रित हो गए थे। 2 साल के बीच इतना मैंने आक्रोशित हो गए और ये लीडर लोग आकर के आज 15 दिन में ये फैसिलिटी देते हैं, अगले 20 तारीख को आ फैसिलिटी देते हैं, अगले ये कर करके लगभग 50 बार ये झांसा दे दिए। समझे न? जब आए तब कम से कम 50,000 से 60,000 हवेली तो कहाँ कहाँ जा कर के रुकते थे और खर्च करा करके हम लोगों को उजाड़ करके चले गए। कभी उनसे बातचीत हुई आपकी? बातचीत डायरेक्ट हम लोगों को नहीं होने देते थे जी। जो हमसे सीनियर ऊपर का पदाधिकारी थे वो कहता था हमारे पास बोलो, हम अगर उसके पास कुछ किंतु परंतु करते थे तो मेरे ऊपर दबाव पड़ जाता था जी। तो हम लोग मजदूर डिपार्टमेंट में ही रह जाते थे, मेरा आवाज़ ऊपर तक जाने नहीं देता था, जिसके कारण ठगी मारा गया। और इतना तक कहा जाता था कि एक बिहारी आकर के सबको अवरुद्ध कर रहा है, मैंने अथी भी कर दिया गया, स्टेट वाइज ही प्रश्न रख दिया गया। ये सब लेकर के हमारा आवाज़ को दबाते हुए आज फरीदकोट का इस करार है, जो कि मेरा प्रधान जी भी मेरे बीच से निकल के चले गए। जब साल 1 से पूरा उसको दबाव आने लगा, जो मजदूर 50,000, जो मजदूर 10,000, जो मजदूर 5,000 दिया, वो जब मांगने के लिए घर पे जाने लगा तो एकाएक दिल छट बैठे। ना तो परवीन जी, ना तो अपना तरसेम जी, ना तरसेम शर्मा जी, तीनों में से कोई फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया, ना कोई सलाह खबर विचार कुछ नहीं लिया। मर गए तो उस पर संस्कार के लिए भी उस पर कमेंट किए, जो कमेंट में अपने मोबाइल में रखे हुए हैं, समझे जी। ना तो भोग पे आए, ना इससे फ़ोन पर आकर के कोई अपना खैर सलाह लिया हो, समझे। कोई लेखित शिकायत की उनके बारे में? नहीं, जो उनके बारे में शिकायत करने के लिए सारे मजदूर एकत्रित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। जागरूक होकर के हम लोग डीसी साहब के पास, एसएसपी साहब के पास जाएंगे। उसके बाद ना हो तो आगे बैठ करके हम एमपी एमएलए के साथ मीटिंग कर करके आगे की कार्रवाई चालू करेंगे जी। देखिए अगर ये 2021 में यहाँ स्थान ये हुआ जी। सब मिल जुल करके मीटिंग करा करके 2-2, 3-3 मीटिंग करा करके बहुत बड़ा मीटिंग कराया, जिसमें कि घट्टो घट 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया तक खर्च किए मीटिंग में जी। स्थानीय विधायक जी भी आते थे, समझे ना। सबके आंखों में धूल देख कर करके मजदूर को मार के चला गया सब। देखिए जैसे अभी कोई आपकी वीडियो यूट्यूब तक पहुंचती है, हाँ जी। तो मंत्री साहब को क्या कहना चाहिए उनके ऊपर जो बनती कार्रवाई है मजदूर से आकर के मिले जी, मौखिक साथ में चल करके हम लोग उसके लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, गवाह देने के लिए तैयार हैं। हजारों हजार मजदूर की संख्या में जाकर के गवाह देंगे जी। मेरा नाम बोड़ सिंह है जी। मैटर है जी अपना प्रवीण पास अपना जी भार्गव ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਗव ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਰੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਹੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੋਝ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਉਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਵਾਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਜੋ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੱਕੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਹੀ ਹਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਗਲੋਬਲ ਖਬਰਨਾਮਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ फोन लाया सीगा। ये तो सबको पता जी, हम लाइव आके पहले भी बताया था जी। हमने। ये पहली बात तो ये हमारा संगठन नहीं है, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। जी। तो इनके जो राष्ट्रीय प्रभारी है अरुण कुमार पासवान, ये महामंत्री हैं, और मनोरंजन कुमार पासवान, ये हमारे पास आए थे जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जी। तो इन्होंने बोला कि हम गरीब लोगों की मतलब मदद करते हैं और इनको हम सरकारी नौकरी रेलवे में पक्का करवाएंगे, हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि सर हमें कोई हरियाणा पंजाब में, हम बिहार से आते हैं, हमें लैंग्वेज में मतलब दिक्कत आती है जी, हमें यहाँ लोकल आदमी चाहिए कोई। जी। 1 मिनट सर, होल्ड रखना 1 मिनट। तो इन्होंने बोला था कि हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। जी। तो मैंने कहा चलो ये तो बढ़िया काम है। मैंने कहा, वो कह रहे हमें कोई लोकल आदमी चाहिए, हम इतनी दूर से आ नहीं सकते, आप पढ़े लिखे हो। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, मैं मास कॉम से PhD MPhil PhD की है मैंने। जी। तो कह रहा आप लोगों को जोड़ने का काम करो, हम इनको पक्का कराएंगे। मैंने चलो ये तो बढ़िया काम है जी, मैंने कहा हम कर लेंगे। तो हमने मतलब 6 साल तक इनके साथ हर एक माल गोदाम पे जा जाके गरीब लोगों को जो ये बताते रहे, हम वही मैसेज देते रहे। इन्होंने हमें फोटोएं दिखाई रेलवे मंत्री के साथ, श्रम मंत्री के साथ, राजनाथ सिंह के साथ। तो हमें ये लगा मंत्री की फोटो देख के, तब इतना पता भी नहीं था कि मैंने कहा भाई जब सारे मंत्री लोग इनके मंच पे आ रहे हैं तो काम बढ़िया ही होगा। तो जब मंत्री सरकार ही इनके साथ लगी हुई है, तो हमने इनका साथ अपना काम करते रहे, जोड़ते रहे। बाद में इन्होंने बोला QR कार्ड बनाना पड़ेगा इनका, तो संगठन का मेंबरशिप होती है वो। जी। तो हमने लोगों को यही बताने का काम किया कि भी ऐसे ऐसे है। फिर ये पैसे की डिमांड करने लगे कि कार्ड के इतने पैसे लगेंगे। जी। जो भी था सबके सामने अधिकारी बना रखे थे फरीदकोट में, सब जगह पे सारे मिलके, सबको पता था, सबके सामने बात होती थी। जो चंदा चिट्ठा वो देते थे, बिना चंदे के वो कार्ड नहीं बना के देते थे। सबके इनके कार्ड बना रखे हैं। पैसा लिया मनोरंजन है, हमारे पास सारे प्रूफ पड़े हैं पैसे देते हुए के, और हम अकेले नहीं जाते थे। जब पैसा देते थे सभी लोग साथ होते थे जो अधिकारी बना रखे हैं। जी। तो कार्ड बनाने के बाद हमें लगा मैं चलो कोई बात नहीं, अगर काम हो रहा है तो इतना खर्चा हो रहा है तो लगते होंगे पैसे। तो इन्होंने क्या किया सर, कितने पैसे होते थे कार्ड बनाने के? कार्ड बनाने के पहले किसी से पहले बोलते थे 3-3 हजार, फिर 5-5 हजार, कभी 10, कभी मतलब उनका कोई वो नहीं था। अच्छा। मतलब कोई डिसाइड नहीं, उनका चंदे से मतलब था भी कोई बात नहीं, किस्तों में दे दो, ऐसे दे दो, वैसे दे दो। वो खुद मिल के बोल के जाता था यहाँ सबको, हमने थोड़ा ना बोला था। हम तो एक मीडिएटर का काम कर रहे थे कि उनकी बात को जो वो आदेश देते थे यहाँ पहुंचाने का काम करते थे। तो सारा जितना फिर हमने CM का प्रोग्राम किया मनोहर लाल खट्टर जी का, तो उस प्रोग्राम पे पैसा लगा सारा। फिर इसकी रथ यात्रा निकाल ली, उस पे लगा, इनको कार्ड के दिए। तो ये बोलता रहा 6 महीने में करा दूंगा, 8 महीने में करा दूंगा, 10 महीने में करा दूंगा। ऐसे कर करके इसने 6 साल निकाल दिए।
अब हमने जनता को जो जोड़ के दे दी, ईमानदारी से काम करके दिया, पब्लिक को सारा जितनी भी है इनको इनको खुद भी बुलाते थे हम कि आप खुद बताओ जी जो भी काम है। तो इन्होंने वहां पे अपना हर बार आके ये डेट दे जाते थे कि अब QR कार्ड बना दो, फिर कह रहा है श्रम कार्ड बना दो। ये क्या करते हैं, दिल्ली में बैठ के पता कर लेते हैं कि सरकार ने क्या स्कीम निकाली है गरीबों के लिए। तो ये बोल देते हैं कि हमने करवाया ये। अब हमें भी ऐसे ही लगता था शुरू में, तो एकदम तो किसी का पता नहीं होता ना भाई, आप किसी काम में घुसोगे तो तभी पता लगेगा ना कि ये काम क्या है, एक्सपीरियंस तो तभी होता है। बिल्कुल। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें मतलब महसूस होने लगा। मैंने कहा डेट पे डेट दे दो सर, मैंने कहा फिर हमें लगा सरकारी काम है, चलो टाइम लगता होगा। फिर उसके बाद बोल दिया ग्रीन कार्ड बनाओ, फिर कह रहे मेरी रथ यात्रा है वो निकाल लो। अब इतने ऑफिस भी, बंदे भी, दिन रात गाड़ियां घूम रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, इनको भी चंदा हम दे रहे हैं, लोग भी परेशान हो गए थे, हम भी। फिर हमने सारे बंदे इकट्ठे किए, जितने भी अधिकारी बनाए थे, फरीदकोट से थे, सारे थे ये टोटल। तो हमने बोला, मैंने कहा भाई साहब जो भी चीज है ऊपर वाले, हम इनको पटना भी लेके गए, सारे जितने भी लोग हैं ना, अकेला हम नहीं गए ना, हमने किसी से चंदा चिट्ठा पैसा लिया। जो भी पैसा होता था लोग हमारे साथ जाते थे, ये जितने भी हर एक जिले से अधिकारी बने हुए हैं। अब तो जो मर्जी बोलते रहे, देखो बोलते हुए मुंह नहीं पकड़ा जाता, सच्चाई सबको पता है भी कैसे क्या है। संगठन उनका है, बिना पैसे के वो कार्ड वगैरह कुछ बनाते नहीं है, सारा पैसा उनके पास जा रहा है या प्रोग्रामों में लग रहा है। हम तो कर्जा चढ़ा चढ़ा के, बल्कि हमने घर से भी काफी पैसा लगा दिया, 6 साल उसके पास लगा दिया, हमें कौन सा वो सैलरी दे रहे थे कुछ भी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब हमने CM का प्रोग्राम किया ना खट्टर साहब का, उसमें 25 से 30 हजार लोग आए वहां पे। तो फिर हमें क्या गया, पावर मिनिस्टर है रणजीत सिंह चौटाला, उनका फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे करके सरकार बहुत खुश है, बहुत मेहनत कर रही है, इतने लोग जोड़ रखे हैं, तो CM साहब ने बुलाया आपको। तो उन्होंने बताया कि आपका संगठन क्या है, तो उन्होंने पता करके दिया हमें कि भाई ऐसे ऐसे करके अब एक बार दिल्ली से पता करो कि भाई ये काम एक्चुअल में हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर हम गए, रेलवे मंत्री बिट्टू से मिले हम। हमने तो जो भी किया पारदर्शिता के साथ किया, हम मंत्रालय में भी लाइव हुए रवनीत बिट्टू के साथ, वो भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, आप उसमें देख लेना। क्योंकि हम लाइव इसलिए थे, मैंने कहा एक तो मैं जाके सबको बात बताऊंगा अपनी। एक जो रेलवे मंत्री क्या करे, हमने रेलवे मंत्री को साफ बोला, मैंने कहा जी ये संगठन है BRMGS, हम इसमें काम कर रहे हैं, और हमारे जो अधिकारी हैं अरुण कुमार है, मनोरंजन कुमार है, वो ये बोल रहे हैं कि रेलवे इनको पक्का कर रही है। वो सारा ऑन रिकॉर्ड है, वो सारा मंत्रालय में, रेल मंत्रालय के अंदर जाके लाइव हो रखे हैं हम, और उनसे पूछ के लाइव हुए थे मंत्री से। मैंने कहा जो भी चीज है जी आप, वो तो कुछ नहीं बता रहे, हमें लारे पे लारा लगा रहे हैं कि आपका ये काम हो रहा है। मैंने कहा ये गरीब जनता है जी, और यहाँ से आपके फरीदकोट से भी बंदे गए हुए थे, पूरे पंजाब से कम 35 से 40 बंदे हम एंट्री करवाई थी रेल मंत्रालय में। और वहां पे रेलवे मंत्री बिट्टू के सामने बोला, मैंने कहा ये देखो जी गरीब लोग हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहाँ बोरियां उठा रहे हैं, और ये लोग एक तो पैसा मांग रहे हैं, एक हमें ये नहीं बता रहे कि इनका काम होगा या नहीं होगा। आप हमें स्पष्ट तरीके से, आप मंत्रालय में हो, रेल मंत्री, आप रेलवे राज्य मंत्री हो, आप हमें ये बताओ कि ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा तो ये कब होगा। तो मैंने कहा हमें क्लियर कर दो जी, हमें तो 6 साल हो गए उनके पीछे भागते हुए, हम उनकी बल्कि शिकायत लेके रेल मंत्रालय में गए। तो रेलवे मंत्री ने साफ बोला कि आप हमें अगर 6-7 दिन का टाइम दो, मैं रेलवे के अधिकारी हैं उनको आपके साथ बिठा देता हूँ, वो आपको सारा स्पष्ट रूप से बता देंगे कि अगर कोई चिट्ठी, लेटर, कोई आदेश होगा तो वो तो रेल मंत्रालय से होगा ना। ये तो है नहीं है कि भाई वो संगठन इसको काम कर दे, कोई पावर नहीं है संगठन में। तो उन्होंने हमें बुलाया, 4-5 दिन बाद बुलाया, वहां पे है अमित श्रीवास्तव जी हैं, कोई रेलवे के अधिकारी हैं, जो भी पूरे इंडिया में जो लेटर डिस्पैच होता है ना, अगर कोई काम हो रहा है तो उनके द्वारा होता है। उन्होंने हमें बिठाया। भाई साहब उस दिन हमारी ना, आप मानोगे नहीं हालत क्या थी, उस टाइम भी सभी लोग गए थे, ये नहीं कि मैं अकेला गया था। उन्होंने बोला कि भाई साहब ये संगठन फ्रॉड है और सब फ्रॉड कर रहे हैं, आप भी इसके शामिल होके आप इसमें इनको ना बढ़ावा दो। और ये देखो अगर पूरे भारतवर्ष से मेरे पास उसने चिट्ठी, लेटर, पूरी फाइल खोल दी, कह रहा मेरे पास इतनी RTI लगी हुई है, कंप्लेंट आ रही है लोगों की, लोग परेशान है। फिर हमें पता लगा कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है। तब तक हमें कुछ नहीं पता था इनके बारे में, तब तक हमें यही था कि जगदम्बिका पाल जी हैं, सांसद हैं, वो इनके साथ लगे हुए थे। हम इस चक्कर में हम विश्वास कर गए। मैंने कहा जब मंत्री लोग साथ में लगे हुए हैं और गरीब लोगों का काम है, मैंने कहा ये करते ही होंगे, मतलब हम दलदल में फंसते ही गए ना, तो हम पीछे हट सकते थे क्योंकि लोगों का विश्वास बन गया था। और उसके बाद हम प्रोग्राम में इतना कर चुके थे, मीडिया में आ चुके थे, अब हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, इसको रेल मंत्रालय में जब हमें पता लगा कि भाई साहब ये काम कुछ नहीं है, ये सारा स्कैम है, ये फ्रॉड है, कुछ नहीं है,
तो हमने क्या किया, सारे जितने भी हरियाणा पंजाब के अधिकारी थे सबको बुला के सारी सच्चाई बता दी। मैंने कहा भाई साहब हम तो यहाँ समाज में रह रहे हैं, वो तो बिहार से हैं, हमने रहना यहीं पे, और अपने साथ हो रहा है स्कैम, ये कोई काम नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, किसी ने आज के बाद चंदा चिट्ठा नहीं देना, किसी ने कोई ऐसी, मैंने कहा इसके आगे प्रोग्राम नहीं करने हैं, हम इसका बायकॉट करेंगे। और वो ऐसे लोग हैं जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं ना, या तो अपना वो टांग टूंगे तड़वा के उनके घर बिठा देते हैं, या क्या करते हैं उनका ही नाम लगा देते हैं जो अधिकारी बना होता है। जब उनके पास कोई उनका विरोध करता है ना, तो वो ये बोल देते हैं कि भाई साहब भी इन लोगों ने हमारे संगठन के नाम पे पैसा इकट्ठा किया, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो वो कैश लेते हैं दिल्ली बैठ के। और मैं नहीं हूँ, आपको मैं कम से कम 50 नंबर दे दूंगा पूरे इंडिया से, असम से, राजस्थान से, बंगाल से, कलकत्ता से, तो जहाँ के आप बोलोगे ना, जहाँ जहाँ इन्होंने सेम चीज करके है। हमारे जैसे लोग हैं जो वहाँ पे जिला प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, अब जिसकी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी बन गई, नीचे लेवल जनता में तो वही जाएगा ना बंदा, जनता की नजर में, मीडिया की नजर में तो वही बंदा जो प्रदेश में काम कर रहा है। ये तो दिल्ली बैठ के पैसे लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसका ही नाम लगा देते हैं कि हम इसको निष्कासित कर रहे हैं, ये संगठन के नाम पे पैसा उठा रहे हैं, तो ये उसी बंदे को फंसा देते हैं जो इनके लिए काम कर रहा होता है, और फिर नए बंदे को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। अब एक बात, कौन सा ऐसा काम है सर, 30 साल हो गए उनको काम करते हुए, कि 30 साल में कोई इनके पास डाटा नहीं पहुंचा, या इनके पास पैसा नहीं पहुंचा, और गरीब लोगों का काम है, सरकार पागल है पैसा लेगी। वो तो बाद में हमें ये लगा, मैंने कहा चलो ये खर्चे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, इसीलिए पैसे तो प्रोग्राम पे घर चलाने के लिए लगते हैं, मैंने इतना बड़ा संगठन है, इसीलिए लोगों को विश्वास हो रहा था कि चलो कोई बात नहीं हो रहा होगा। फिर इनकी FIR बठिंडा में भी कटी हुई है, असम में कटी हुई है, बंगाल में कटी हुई है, तो हमने क्या किया, वहाँ सारे बंदों को बुला के हमने मनोरंजन को बुलाया कुरुक्षेत्र में, जो इसका राष्ट्रीय प्रभारी है। राष्ट्रीय प्रभारी को ये बोला गया हमने, और मैंने अकेला मैं नहीं था, जितने भी लोग मेरे साथ काम करते थे, आपका तरन तारण हो गया, अमृतसर हो गया, या बठिंडा हो गया, सुनाम हो गया, सारे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे ना, जो मेरे विश्वास पे काम कर रहे थे, मैंने कम से कम 25-30 लोग बुला लिए, और कुरुक्षेत्र उनको बुला लिया जो इसका राष्ट्रीय प्रभारी अरुण कुमार का लड़का है, जो हमने उसको बिठा के, मेरे माता पिता भी थे वहां पे, हमारे घर पे बुलाया था उसको, मेरा भाई भी था, और सारे जितने हमारे साथ काम करते थे। और इसमें कोई भी 1% में या वेरीफाई कर लेना, एक भी बात झूठ लगे तो हम उसके जिम्मेवार हैं। हमने उनको बोला, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है वहां की, फोटो वीडियो सारी पड़ी है मेरे पास, जो मैं बात बोल लूंगा मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं, क्योंकि झूठी बात तो आप जितनी मर्जी बोल लो उसका सिर पैर नहीं होता, कोई ना कोई प्रूफ तो होता होगा हर एक बात का। तो हमने वहां पे, आप पूरे पंजाब में ही काम करते थे? हरियाणा पंजाब में काम करते थे। हमारा क्या है, आप बता तो क्या होता है, जो जिला अध्यक्ष है फरीदकोट का हो गया, वो जिला को देखते थे। हमारा काम था वो जो भी जितने भी फार्म भर के लेके आते थे उनके कार्ड बनवाने, हम दिल्ली जाके उनके कार्ड बनवा के आते थे। ये काम था, सबका काम बटा हुआ था, मैं अकेला नहीं था, सारे थे। तो सारे बंदे हमने बुला के, मनोरंजन कुमार को कुरुक्षेत्र बुलाया, हमने उसको बोला, बकायदा वीडियो बनी हुई है मेरे पास घर पे बैठ के, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप मेरी बात सुनो, या तो ये बता दो कि आपके पास कोई चिट्ठी लेटर कोई है सरकार का, क्योंकि जो सरकार का काम है बातों से तो होगा नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन तो होगा, कोई चिट्ठी लेटर तो सरकार देगी ना कि हम इनका काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा या तो मेरे को चिट्ठी लेटर दे दो, या मैंने कहा मैंने जो भी आपको चंदा चिट्ठा दिया है और जो हमने प्रोग्राम पे लगाया मेरे पैसे दे दो, हम लोगों का जोड़ देंगे। भाई सब अपने से होगी गलती, हम समझ नहीं पाए, और अब हमें पता लगा है। मैंने कहा गलती तो किसी से भी हो सकती है, एक तो जानबूझ के करना। जब तक मेरे को नहीं पता था कि ये फ्रॉड है, हमने काम किया, जब तक हमें विश्वास था। जिस दिन हमें पता लग गया हमने खुद संगठन छोड़ा, वहाँ पे उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई चिट्ठी लेटर नहीं था उस टाइम। आपने कितने पैसे इकट्ठे करके दिए? उसके हमने नहीं कोई भी इकट्ठे नहीं करे हैं, जो भी चीज है, जो लोग सारी जनता जितनी भी है ना, हर एक जिलाधिकारी है, उन्होंने अपने अपने लेवल पे नीचे क्या लिया दिया। नीचे भी लोग सारे गड़बड़ कर रहे थे, जो आप जो अधिकारी बने हुए हैं ना, इन्होंने खुद गड़बड़ कर रखी है सबने, ये अपनी गड़बड़ छुपाने के लिए उनके साथ लग गए। जब हमने सारा खुलासा कर दिया और उसने बोला कि मेरे पास कुछ कोई चिट्ठी लेटर नहीं है। मैंने कहा फिर आप जितना मैंने चंदा चिट्ठा दिया, जितना हमने आपके लिए खर्चा किया, आपका CM का प्रोग्राम किया, रथ यात्रा निकाली, आपके जितने प्रोग्राम किए, मेरे पास सारे बिल पड़े थे। मैंने कहा जी हमने आपके लिए काम किया, ये आपको चंदा चिट्ठा दिया, ये हमें आप वापस कर दो, या मैं कोई वो दे दो, आप चिट्ठी लेटर है तो वो दे दो, दूसरी बात हमने करनी नहीं है। तो वो मान गया, वो हमें रिटर्न में दे गया कि मैं आपके जितने भी पैसे आए हुए हैं
लिख के अपने हाथ से दे गया कि मैं आपको 15 दिन के अंदर ये सारे पैसे वापस कर दूंगा और आपने मेरा कोई विरोध नहीं करना ना कुछ करना। मैंने कहा हमने क्या जरूरत है जी विरोध करने की, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा हमें पता लग गया, हम आज के बाद आपके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि लारे पे लारा लगाना ये सामाजिक काम है। मैंने कहा इज्जत के लिए हम दोनों भाई हैं ना, तो शादी भी नहीं करा रखी, हमने क्या करना था पैसे पूसे इकट्ठे करने का। तो हमने तो मैंने कहा गरीब लोगों के लिए कर रहे थे कि चलो अच्छा काम है तो हो जाएगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, हमारी कंप्लेंट कर दी कि मेरे को गन पॉइंट पे किडनैप किया, किडनैप करके मेरे से ये सब लिखवाया। तो आईजी के पास हम गए, वहां तो हमारे पास वीडियो सारा कुछ थी, वहां की फोटो है, रोटी खा रहा है, मम्मी पापा के पैरों का हाथ लगा रहा है, हंस रहा है, वहां पे सारी हमारे पास तो वीडियो थी। तो उसका कुछ नहीं बना। फिर हमने रेलवे मंत्रालय के सामने बैठ के इसके सारे प्रूफ दिए, लोगों को इसकी सच्चाई बताई। पूरे इंडिया में हम वो बंदे हैं जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं और कोई भी बंदा इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। और हमारे पास सारे प्रूफ पड़े हैं इसके। अभी इसका असम में पर्चा कटा हुआ है, हम सरकारी गवाह बने हुए हैं उसमें। जितने भी क्या नाम है आईपीएस अधिकारी हैं उनकी टीम है पूरी, उन्होंने पर्चा इनका काट रखा है। ऊपर से इसने होल्ड करवा दिया उसको कि किसी मंत्री का फोन करवा के असम में इलेक्शन है अभी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और चलो कोई बात नहीं, अगर ये सही है। अभी इसने प्रोग्राम रख रखा था पंजाब और हरियाणा में, अभी कैथल में प्रोग्राम था इसका 5000 लोगों का। मैं वहां सारे मीडिया वाले बुला के मैंने सारे प्रूफ रख दिए मीडिया के सामने। और मैंने एसपी ऑफिस में इसकी वहां पे एप्लीकेशन दी कि जी आप जांच करो, ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, आप इनसे कोई प्रूफ मांगो और हम इनका विरोध करेंगे। तो ये प्रोग्राम में नहीं आया, इसने अगले दिन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अगर ये सही था तो प्रोग्राम में क्यों नहीं आया। उसके बाद पंजाब का प्रोग्राम था 17 तारीख का, ये पंजाब का भी इसने कैंसिल कर दिया। होटल बुक थे, पैलेस बुक था। अगर ये सही था तो इसको आना चाहिए था वहां पे। और मैंने इनको ये बोला था कि आप ऐसा करो, ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप मेरे पे आरोप लगाओगे मैं आप पे लगाऊंगा। आप मैंने कहा ऐसा करो पूरी नेशनल मीडिया को इकट्ठा कर लो, उधर से आप आ जाओ, इधर से मैं आ जाऊंगा और जो जनता है उसको ही बुला लो, सारे आमने सामने लाइव होगा सारा कुछ। मेरे पास जो प्रूफ है आपको कि आप ये स्कैम कर रहे हो मैं आपको दूंगा। अगर आपके पास प्रूफ है कि आप गरीब लोगों का काम करा रहे हो तो आप मैंने कहा वो हमें सबके सामने मैंने कहा प्रूफ कर दो कि आप सच्चे और आप असली में काम करवा रहे हो। तो मैंने कहा मैं मीडिया के सामने आपके पैरों का हाथ लगा के माफी मांग लूंगा दोनों बाप बेटों से। इसमें तो कोई गलत नहीं है, मैं तो बुला रहा हूँ मीडिया के सामने और जनता के सामने। पक्ष विपक्ष जब आमने सामने होगा निष्कर्ष तो तभी निकलेगा ना। अब पीछे से कोई कोम जो मर्जी बोलता रहे पैसे खाए जो खाए, पैसा तो सारा इंडिया से उनके पास जा रहा है। हम कौन होते हैं पैसे खाने वाले। लेकिन मेरे को उन्होंने अधिकारी बना रखा था, कार्ड लोग लेबर वाले सब बोलते थे कि हमारा कार्ड कटवा दो जी, हमारा ये कर दो। मैंने कहा भाई साहब मनोरंजन को खुद बुलाया था यहाँ पे, वो भी वीडियो चिट्ठी बढ़िया, ये खुद बोल के जा रहा है कि प्रवीण का कोई लेना देना नहीं है, न तरस भार्गव और का भाई एक काम करवाने के लिए इतना चंदा चिट्ठा लगेगा। वो खुद लोग दे के जाते थे, इसको ही दे के जाते थे, हम तो साथ होते थे बस। हमने क्या कर लिया और वो हमारे पास सारे मेरे पास तो प्रूफ पड़े हैं, जल्दी इनकी गिरफ्तारी कराएंगे। ये प्रोग्राम अभी भी इन्होंने प्रोग्राम किया हरियाणा में, वो छुप के प्रोग्राम करते हैं। कोई भी प्रोग्राम होगा बंदा फ्लैक्स लगाता है, सोशल मीडिया पे डालता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम के बाद डालते हैं अब। और खुल के ये आते नहीं आमने सामने। हमने तो चैलेंज कर रखा है, आप बुला लो मीडिया। अब जो आपके पास लोग आ रहे हैं ना कि भाई इन्होंने भार्गव ने ये गलत किया वो किया, तो आप बोलो कि आप अपने ऊपर लीडर को बुला लो, अरुण कुमार को, मनोरंजन को, और हम आने के लिए तैयार है। जनता को भी बुला लो, उनको भी बुला लो, आमने सामने बिठा लो, वहां मेरे से हिसाब किताब मांगो, मैं वहां दूंगा और उससे भी लूंगा हिसाब किताब। सच्चाई तो तब सामने आएगी भाई साहब। ऐसे क्या बोलने लगे पैसे लेके बोलेंगे, ये खुद लोग सारे गलत लोग। जब सारा हमने, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये काम हो रहा है और ये भार्गव होने नहीं दे रहे, अब वो मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा है ये काम नहीं होने दे रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे साथ आप मंत्रालय में चलो, जो आपके पास लोग आ रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ सबको पूरे इंडिया में हमने बोला है कि भाई साहब मेरे अरुण को बुला लो, मनोरंजन को बुला लो, आप लोग आ जाओ, मैं मंत्रालय में लेके चलता हूँ। जितने भी गिरिराज जी हैं, बिहार के मंत्री हैं, चौटाला साहब हैं, खट्टर साहब हैं, सबको इस बात का पता है। वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जितने भी मंत्री हैं। यहाँ पुल्लर साहब हो गए, जेल मंत्री हैं जो, और हमने भगवंत मान साहब को सबकी नॉलेज में डाल रखी है ये बात। हम तो बिल्कुल ओपन होके आ रहे हैं, सरकार को भी पता है। तो हमने बोला कि आप वहां पे चलो, छोड़ो बात अरुण कुमार क्या कह रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आप उनको बुला लो, मीडिया को बुला लो, मैं मंत्रालय में लेके चलता हूँ जहाँ से ये लेटर डिस्पैच होते हैं। तो जहाँ पे वो सरकार अपने अपने बता देगी, सेंटर जो श्रम मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, कि ये इनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे क्या फायदा एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने का। वो तो बोलते रहो। हम तो, मेरा तो दफ्तर भी खोला है, नंबर भी खोला है, हम तो ओपन होके घूम रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आओ हमारे पास, मैं देता हूँ सारी फाइल, इनके प्रूफ देता हूँ
ये स्कैम कर रहे हैं और मैं चिट्ठी लेटर देता हूँ कि इन्होंने गलत काम किया, मैं सारा हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ है, जिन्होंने ये बोल रहे हैं ना पैसा इकट्ठा किया, पैसा नहीं किया, वो प्रोग्राम पे पैसा लगाया, इन लोगों ने लगाया जो नीचे वाले हैं। ये प्रोग्राम करते थे, हमें बुलाते थे और इनको मनोरंजन को बुलाते थे। अब जितना भी इन्होंने प्रोग्राम पे पैसे लगाए वो सारा जोड़ तोड़ के ये बोल रहे हैं कि हमने उनको दे दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आमने सामने बैठ के बात होगी, या मंत्रालय में बैठ के बात होगी, या नेशनल मीडिया को बुला के उनको बुला लो, आमने सामने बात कर लो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा मैं वही माफी मांगूंगा सबके पैरों का हाथ लगा के अगर मैंने गलत किया कुछ भी। अब ये लोग बिना उनके, वो तो सामने, अब एक बात बताओ, मैंने प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने उनका प्रोग्राम कैंसिल कराया, मैंने नहीं कराया, उन्होंने खुद कैंसिल किया। मैंने तो मीडिया में एसपी दफ्तर में एप्लीकेशन दी थी, मैंने कहा जी जो भी आप कार्रवाई करो मेरी भी करो, जितनी भी है ना वो तो सरकार करेगी ना, जो डिपार्टमेंट का काम है किसी से पूछताछ करना, भी कितना कहाँ से क्या आया क्या नहीं आया, वो तो पुलिस प्रशासन या वो करेंगे ना। कोई और तो जो मर्जी बोलता रहे, मैं तो तैयार हूँ। मैंने कहा इंक्वायरी कराओ, आप सबकी कराओ, नीचे से लेके ऊपर तक की सबकी इंक्वायरी करवाओ, तो अपने आप पता लग जाएगा किसने क्या लिया दिया है वहाँ पे। ऐसे कैसे पता लगेगा बोलने से? मैं आपको जो मर्जी बोलता रहूँ, मैं तो मंदिर गुरुद्वारे जहाँ मर्जी खड़ा कर लो वहाँ बोलने के लिए तैयार है। नेशनल मीडिया बुला लो, सारी जनता जो नीचे वाले हैं वो आ जाएंगे, ऊपर वाले आ जाएंगे, वहां आने के लिए तैयार हूँ। या जिसको ये लग रहा है कि वो काम करवा रहा है, असली में 30 साल से तो काम हुआ नहीं, 1998 से काम कर रहे हैं। आज मैं विरोध कर रहा हूँ, 6 साल तो मैंने उनका साथ भी दिया, तब क्यों नहीं उन्होंने काम किया? और मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं आप भी उनको ये बोल लो कि भाई साहब अगर काम हो रहा है ना, मंत्रालय से जाके पता करो ना, मैं एंट्री पास करवाता हूँ वहाँ पे। मैं खट्टर साहब को बोलता हूँ, किसी भी मंत्री को बोल के मैं श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय में इनके पास बना दूंगा, जहाँ से लेटर डिस्पैच होते हैं वहां जाके पता कर लो। चोर के नाम से फाइल बनी है उनके पास, इसकी मनोरंजन और अरुण कुमार की। ओके, हाँ, तो वैसे भाई साहब बोलने का अब नाम तो लगाएंगे। देखो जो लोग जो खुद गलत कर रहे हैं वो अपने आप को खुद सही साबित करने के लिए नाम तो लगाएंगे। हम तो दोनों भाई हैं, हमारे साथ मतलब कोई नहीं ये भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। मैं तो खुद अकेला जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ। इसके 5000 बंदों का प्रोग्राम था, ये फिर भी नहीं आया। अगर आपने कहीं प्रोग्राम रख रखा है और आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई चैलेंज कर रहा है कि भाई साहब आप गलत हो, आप वहाँ नहीं जा रहे, तो इसका मतलब आप गलत हो ना, अगर आप नहीं जा रहे वहाँ पे। तो ये नहीं रहा। अब इनको ये लग रहा है कि हमारी इनकी दुकानदारी खराब हो रही है, जो नीचे वाले भी आपको बोल रहे हैं कि इन्होंने ये किया वो किया, क्योंकि लोग इनकी जान खा रहे हैं अब। और दूसरी बात, ये जो अधिकारी बने हैं पंजाब के नए जो आपके पास आ रहे हैं, इनको ये बोलना चाहिए था कि भाई साहब आप मेरे को चार्ज दे रहे हो ना, पहले जो पुराने वाला जिसको चार्ज दिया उसको बिठाओ, सारा नक्की करो, उसके बाद हम पदभार संभाल लेंगे। ये क्यों अधिकारी बन के उनके संगठन के साथ काम कर रहे हैं? जो जिसने चार्ज लिया उसके बाद तो उसकी जिम्मेवारी बनती है ना लोगों को जवाब देने का। अब इनके पास कोई जवाब तो है नहीं है। लोग इनसे पूछ रहे हैं कि हम कब लगेंगे, नीचे गरीब जनता इनकी जान खा रही है। तो ये इसलिए मीडिया में आके अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं कि सारा ढींगरा हमारे ऊपर फोड़ना चाहते हैं कि ये दोनों भाई भार्गव काम नहीं होने दे रहे और ये काम होने वाला है। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये बोल रहे हैं, इन्होंने बाइट दी थी, आपके पत्रकार गए होंगे कि पंजाब वालों ने कि भाई 1 अप्रैल को ये काम होना था, भाई अनाउंसमेंट करनी थी उसने। वो अनाउंसमेंट करनी है भाई सब ऑनलाइन करते वो, क्यों लोगों के गरीब लोगों के खर्चे करवा रहे प्रोग्राम के? तो अनाउंसमेंट तो वहां से भी हो सकती है, चिट्ठी लेटर दिखा दे कोई। और मैं गारंटी देता हूँ 1 अप्रैल को अगर काम होता है तो आप मीडिया पर्सन हो, मैं भी एमफिल पीएचडी हूँ मास कम्युनिकेशन से, पत्रकारिता से। मैं चैलेंज करता हूँ अगर 1 अप्रैल को अगर वो काम करवाता है गरीब लोगों का, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। वो खुल के प्रोग्राम करो, आप खुद बोल दो उनको कि आप प्रोग्राम कराओ जी, भार्गव ब्रदर नहीं आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, आप जिम्मेवारी ले लो, हम कोई खलल नहीं डालेंगे प्रोग्राम में। लेकिन अनाउंसमेंट करके जानी पड़ेगी, उसको चिट्ठी लेटर दिखा के जाने पड़ेंगे मीडिया को। आप लोग ही देख लेना भाई, प्रोग्राम मैं करवाता हूँ आपका, सारे मीडिया पर्सन बुलाऊंगा, सारी पॉजिटिव न्यूज लगेंगी आपकी, लेकिन वहां पे एक डेट देके जानी पड़ेगी कि इस दिन को हम इनको पक्का कर देंगे। तो हम खुद अपने आप को वहां पे आके गिल्टी फील कर लेंगे कि भाई साहब हम गलत थे, आप लोग सही थे, अगर इनका काम हो रहा है तो ये कर लो आप। 1 अप्रैल को बोल रहे हैं, उन्होंने खुद बाइट दिया, आप कोई मीडिया का होगा 1 अप्रैल को जी हमारा काम हो जाएगा, वो कोई काम नहीं होता। 4 लेबर कोड पास हो रहे हैं, वो पूरे इंडिया के श्रमिकों के लिए हो रहे हैं पास, 4 लेबर कोड पास। तो इनका क्या रोल है संगठन वालों का? और उसमें कोई ये बोल रहे हैं हम रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिलाएंगे,
वो तो सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं जितने भी श्रमिक हैं, ताकि इनका शोषण ना हो। वो तो सरकार कर रही है, उनका थोड़ी ना कोई रोल है। ये वो बोल बोल के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो ऊपर से फिर इनको बोल रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि 5-5 हजार रुपए चंदा इकट्ठा करो, इन्होंने प्रोग्राम करना था, पैसे इकट्ठा करने थे, वो हमने प्रोग्राम करने नहीं दिया, इसलिए हम पे नाम लगा रहे हैं कि भाई साहब की वो अपना काम खराब कर रहे हैं। बिना पैसे को करें ये नीचे। अब ये चलो हमारा नाम ला रहे हैं संगठन, अब तुम लोग क्यों काम कर रहे हो उनके साथ, जब हमने खुलासा कर दिया। जब तक आपको किसी चीज का नहीं पता ना कि गलत है सही है, तब तक आप कर रहे हो तो उसको गलती में नहीं माना जाता। वो आप ये लगा गलती इंसान से हो जाती है जब तक आपको नहीं पता। जब आपको पता लग गया कि कोई काम गलत है, उसके बाद भी आपको वो काम कर रहे हो, इसका मतलब तो आपकी इंटेंशन गलत है। जब हमें ये पता लगा कि ये काम गलत है, हमने उसी दिन भाई साहब लाइव आके रेल मंत्रालय के सामने उसको चैलेंज किया था कि मैं इस डेट को रेल मंत्रालय के सामने आऊंगा, 15 दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आप मीडिया के सामने मेरे सामने बैठो, जनता को बुला लो और मंत्री को बुला लो, जिस मर्जी को बुला लो, जगह भी आप निश्चित कर लो, हम दोनों भाई वहां पे आएंगे। आप अपने प्रूफ ले आना, मैं अपने प्रूफ ले आऊंगा। अगर आप सही में एक्चुअल में काम कर रहे हो तो मैं वहाँ मीडिया के सामने आपके दोनों बाप बेटों के पैरों के हाथ लगा के माफी मांग लूंगा। इतना कर सकता हूँ मैं। चलो इसमें बता दो आप क्या गलत है। अभी नहीं सर, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं चलो अगर जरूरत हुई तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। कोई बात नहीं, आप जैसे कर्मचारी कर लो, आप उनको बोल दो कि भाई साहब आप प्रोग्राम करो, जो मर्जी करो, लेकिन जिस दिन प्रोग्राम होगा हम मीडिया को लेके आएंगे, वहाँ पे चिट्ठी लेटर प्रूफ आपको दिखाने पड़ेंगे, एक डेट देनी पड़ेगी, क्योंकि गरीबों का मामला है। हम गरीबों की आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि और कोई शोषण ना हो हरियाणा पंजाब के लोगों का। हमारा मकसद इतना सा है और कोई मकसद नहीं है हमारा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके।